तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एबीसी सीरीज और सी से आज कैंसर सर्विक्स डिस्कस करेंगे एंड दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन गायनेकोलॉजी फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट फाइनल ईयर्स। ये क्वेश्चन आप मान के चलिए 110% आता है। इसकी स्क्रीनिंग, एनाटमी, लिम्फेटिक ड्रेनेज, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, बिकॉज एज यूजी यू आर लाइक दिस इज योर कोर एंड मस्ट टू नो एरिया। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन में भी कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग हर MBBS Indian graduate को आनी चाहिए. So we will discuss screening today only in short and further treatment, advanced cases of cancer cervix and case-based discussion and management वो हम दूसरी बार में पढ़ेंगे. तो आज short में we are going to study about cancer cervix का screening and here it is. So I'm sharing my screen and meanwhile when I'm setting up the stage, we will be discussing the entire subject and topic. So don't forget now to subscribe and to press the bell icon so that you get notifications. So screening, we will start. As you all know, it is the commonest genital tract malignancy in female, but the commonest cancer in females is breast cancer only. The single causative etiology is human papillomavirus. There are multiple strains, around 150 strains of HPV. Not everyone is causing cancer cervix. Cancer cervix causative agent 16, 18, 31, 33, 45 हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं like 6 or 11 जो anogenital wart or multiple other strains that can cause oral cancer, penile cancer. So HPV is a universal infection because it is transmitted through sex. And having repeated childbirth, maintaining poor personal hygiene, low level of immunity, and having infection predisposes a female to contract this particular infection, have it in persistence, and let it develop into cancer. So इसका ना कैंसर से पहले एक प्री इन्वेजिव लीजन यानी कि प्री कैंसरस स्टेज होती है. The only good thing about cancer cervix is good for us so that we can detect it timely. एक चीज अच्छी होती है कि इसका लॉन्ग इंटरवल ऑफ डेवलपमेंट होता है अराउंड 10 to 15 ईयर्स. यानी कि अगर इन्फेक्शन आज हुआ, परसिस्ट किया, वॉश ऑफ नहीं हुआ ड्यू टू इम्यूनिटी, तो वो कहीं 10 से 15 साल बाद जाके कैंसर बनेगा. और दूसरी चीज ये है कि ये इतना लंबा जेनाइटल ट्रैक्ट में रहता है. We have got ample of opportunities to screen it. So that is why it is called as 100% preventable cancer also. Symptoms, majority of the time it is persistent profuse discharge per vaginum, which may be foul smelling also. Having post-coital bleeding or contact bleeding is very important. और ये तो हमेशा जब भी patient लेके आती है, you should always rule out CA cervix. Having persistent backache, ये advanced cancer का भी feature होता है, PID का भी feature होता है, क्योंकि इसमें सेक्रल प्लेक्सस में अगर इन्फिल्ट्रेशन है या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तभी हो सकता है. तो वी हैव टू रूल आउट एंड समटाइम्स इट मे हैव नो सिम्टम्स आल्सो. So let us discuss the anatomy of cervix and why human papillomavirus is infecting it. We all know cervix has two part, endocervix and ectocervix. एंडोसर्वाइकल कैनाल में कोलमनर सेल्स होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होते हैं स्क्वामस सेल में. तो जब ये ट्रांसफॉर्म होते हैं और जहां ये ट्रांसफॉर्म होते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन जोन एक ऐसा जोन है जहां पे कोलमनर सेल्स आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्क्वामस सेल्स. और जहां पे कोलमनर सेल्स और स्क्वामस सेल्स बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वामो कोलमनर जंक्शन. सो एक स्क्वामो कोलमनर जंक्शन यहाँ पे जहां तक ट्रांसफॉर्म होता है, दूसरा स्क्वामो कोलमनर जंक्शन का एंड कहीं यहाँ पे होता है. तो इसे हम न्यू स्क्वामो कोलमनर जंक्शन बोलते हैं, इसको ओल्ड स्क्वामो कोलमनर जंक्शन बोलते हैं. So whenever HPV virus is coming in contact with this mouth of cervix where transformation is happening because it is active zone, तो यहाँ पे infection होने के chances होते हैं. Now the good thing is the female is having good hygiene, no infections, having good immunity, then this infection can get washed off by itself. लेकिन अगर poor hygiene है, poor immunity है, pelvic inflammatory disease है, especially chlamydia is a co-factor for development of cancer cervix, ये सब अगर persistent है तो female may get a persistent infection first. और infected cervical cells को कोइलोसाइट्स भी बोलते हैं. And when these cells get transformed or from metaplasia into dysplasia, the pre-invasive lesion हो सकते हैं. और अगर pre-invasive lesion आगे प्रोग्रेस करेंगे तब कैंसर ऑफ सर्विक्स हो सकता है. So let's talk about screening.
स्क्रीनिंग के लिए क्राइटेरिया है, डिजीज शुड बी ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। इंडिया में कैंसर सर्विक्स कॉमनेस्ट, वी आर द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ सीए सर्विक्स केसेस टू द वर्ल्ड, so it is definitely an important public health issue. The screening modality should be cheap. I'll be discussing कि उसका कितना लगभग कॉस्ट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि जितना पैसा लगाया गया है उससे हमें जो रिजल्ट मिल रहा है दैट शुड बी जस्टिफाइंग। सेंसिटिव कि वो कैंसर के केसेस को जल्दी से डिटेक्ट कर ले। स्पेसिफिक यानी कि जो उसने डिटेक्ट किया है वो एक्चुअली कैंसर सर्विक्स है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आए। और एक होता है इजीली अवेलेबल, कि अगर आपने कैंसर सर्विक्स स्क्रीनिंग एक ऐसी मोडालिटी से शुरू कर दी जो अवेलेबल ही नहीं है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, पेशेंट्स को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इट इज टू इन्वेसिव, पेशेंट्स आर हॉरिफाइड एट द जस्ट एट द नेम ऑफ स्क्रीनिंग, देन ऑल्सो इट विल नॉट रन सक्सेसफुली। क्राइटेरिया होगा कि हम कब शुरू करेंगे। अर्लियर एज ऑफ स्टार्ट ऑफ कैंसर सर्विक्स स्क्रीनिंग वाज 21 years, now it is 25 years and we ended up 65 years. It has to be done universally. इसका ऐसा नहीं है कि कोई रिस्क फैक्टर होगा, कुछ सिम्टम्स होंगे तब हम स्क्रीन करेंगे। यूनिवर्सली इट शुड बी ऑफर्ड टू एवरी फीमेल हु इज सेक्सुअली एक्टिव अबव 25 years of age. कहीं पे भी किया जा सकता है एंड एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटी शुड बी हैविंग इट। एंड फ्रीक्वेंसी हम कितने कितने साल पे करेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द मेथड यूज, दैट विल बी लर्निंग लेटर ऑन। एज का है कि अभी WHO ने बड़ा स्ट्रिक्ट इस पे एक्शन लिया है और उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 1 adequate smear per life of every female who is older than 35 years of age. तो एक एडिक्वेट स्मेयर यानी कि एक पैप स्मेयर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी या साइटोलॉजी बेस्ड स्क्रीनिंग 100% होनी चाहिए जो भी फीमेल 35 years ऑफ एज है। यानी कि अगर ऐसी लो रिसोर्स सेटिंग है, इतनी पुअर अवेलेबिलिटी है, पुअर अवेयरनेस है, देन कम से कम एक बार तो 35 years की एज तक या एज के बाद उसका स्क्रीन हो जाना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है 3 स्मेयर्स पर लाइफ टाइम, जितनी जिंदगी है उसमें कम से कम 3 स्मेयर हो जाने चाहिए। तीनों स्मेयर के बीच 10 साल का इंटरवल, स्टार्टिंग नॉट अर्लियर देन 30 ईयर। तो 30, 40, 50 3 बार ये स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। और WHO कहता है कि 70% ऑफ वीमेन ग्लोबली शुड बी स्क्रीन विद हाई परफॉर्मेंस टेस्ट एंड हाई परफॉर्मेंस टेस्ट इज HPV DNA डिटेक्शन। सो अब हम कौन सा टेस्ट करेंगे? सबसे पहले है कि जो एजेंट कॉज करता है कैंसर हम उसी को डिटेक्ट कर लें, सो वी कैन डिटेक्ट HPV DNA। सेकेंड, अब उस डीएनए ने, उस HPV ने सॉरी, सेल में जो चेंजेस किए आप वो सेल निकाल कर देख लीजिए और उसे पता चल जाएगा कि इसमें HPV ने कुछ हरकत की है कि नहीं की है। दैट वी कैन डू बाय पैप स्मेयर या फिर लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। ये दोनों ही टेस्ट लिक्विड बेस्ड, ये दिस वन, ये दोनों ही टेस्ट क्या कर रहे हैं कि जो सेल्स, जो साइटोलॉजी है एक्सफोलिएट हुई है स्क्वामो कोलमनर जंक्शन से, उसको उठाकर और हम उसको स्क्रेप करके एक स्लाइड बनाते हैं या लिक्विड मीडियम में हम उसको यूनिफॉर्मली डिस्पर्स कर देते हैं। स्लाइड बनाकर उसमें देखते हैं कि उसमें कुछ भी प्री कैंसरस या कैंसरस चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, राइट। सो ये हम फंस गए इसमें, यस। So I think this is clear. So first is HPV DNA, second is cell-based or cytology-based screening, that is by Pap smear और LBC. दूसरा टेस्ट क्या होगा कि उन सेल्स में जो भी फिजिकल चेंजेस आए, सेल्स में जो सेल्स अगर खराब हो गई हैं और उन्होंने टिश्यू में कोई फिजिकल चेंजेस किए हैं तो वो फिजिकल चेंजेस देख लें, एंड दैट फिजिकल चेंज इज seen by visual inspection after application of acetic acid. Now MBBS students must remember कि उन लोगों ने बायोकेमिस्ट्री लैब में एक टेस्ट किया था जिसमें टेस्ट ट्यूब में हम जब उसको हीट करते थे तो एल्ब्यूमिन यानी कि प्रोटीन कोagulate हो जाता था। यही उसका फंडामेंटल है। आपने एबनॉर्मल सेल, क्योंकि जो भी एबनॉर्मल सेल्स होती हैं, प्री कैंसरस सेल्स होती हैं, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ गई और आपने एसिटिक एसिड लगाया तो वो कोagulate हो जाएगा, यू कैन सी इट इजीली। सेम हैपेंस विद विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर ल्यूगोल्स आयोडीन। एंड फाइनली कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी में जो भी चेंजेस हैं ये आप इनकी स्ट्रोमल चेंजेस भी देख सकते हैं। सी यहाँ पर हमने सेल के चेंजेस देखे, यहाँ पर हमने फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टिश्यू देखा और यहाँ पे हमने स्ट्रोमा में, जो सेल का स्ट्रोमा है उसमें भी चेंजेस देख लिए। सो दैट इज वाई कॉल्पोस्कोपी में दूसरा मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड एड एज फार एज स्क्रीनिंग इज कंसर्न।
There are other tests like COBAS also, or we can directly detect proteins like P16, Ki67, mRNA, E6, E7 protein, यानी कि early 6 or early 7 proteins. But those are advanced molecular, screening tests, not available universally. So we rely on this. अब हमारे पास दो तरह के टेस्ट हो गए, एक सब्जेक्टिव है यानी कि जैसा मैं इंटरप्रेट करूंगी, जिसमें कि वाया मैंने एसिटिक एसिड लगाया, मैंने देखा, मैंने इंटरप्रेट किया, मैं गलत भी कर सकती हूँ अगर मैं वेल ट्रेन नहीं हूँ. Same happens with visual inspection of toluene iodine. If I am well trained, then only I can say with confidence that yes, something is happening. Then cytology again, I am seeing under microscope, so it depends on my training and my experience how well I am able to pick up the lesion. Then colposcopy again, it needs a good amount of training and the eyes need training so that we pick up the abnormal findings. ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुए कि ये हाँ या ना, बताएंगे कि है कि नहीं है, जैसे एचपीवी डीएनए. अगर एचपीवी डीएनए है तो रिजल्ट विल कम कि यस इट इज देयर. सो दिस reduces the fallacies and errors on part of the person who is examining or doing the test. Now, as I was talking initially about WHO acceleration plans towards elimination of cancer cervix, इसका गोल है बिलो 4 केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर पर 1 लाख वुमेन ईयर्स. तो 2030 के टारगेट्स बनाए हैं कि 90% ऑफ द गर्ल्स शुड बी फुली वैक्सीनेटेड विद एचपीवी वैक्सीन बाय 15 ईयर्स ऑफ एज. ये 90% ऑफ द गर्ल्स को करना ही करना है अगर हमें कैंसर ऑफ सर्विक्स के केसेस कम करने. नाउ 70% ऑफ वीमेन स्क्रीन विद एचपीवी टेस्ट 35 एंड 45 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 2 बार एचपीवी बेस्ड टेस्ट कराना है हर फीमेल को 35 और 45 साल की उम्र तक. एंड 90% जो भी प्री इन्वेजिव लीजन निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो उनको मैनेज किया जाए अप्रोप्रिएटली. सिर्फ डिटेक्शन ही मकसद नहीं है, उसका ट्रीटमेंट भी, so that we achieve a 30% reduction in mortality from cervical cancer. So ये हमें टारगेट्स, और अगर इसे हमें फुलफिल करना है, सो एंटायर हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑफ इंडिया हैज टू नो अबाउट कैंसर सर्विक्स एंड हाउ टू स्क्रीन इट. तो कैसे करेंगे? अगर हम गुड रिसोर्स सेटिंग यानी कि एक अच्छे अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में या टर्शरी केयर सेंटर में बैठे हैं, तो हम पहले ऑफर करें एचपीवी टेस्टिंग. प्राइमरी एचपीवी टेस्टिंग कर सकते हैं या उसको साइटोलॉजी के साथ भी वो टेस्ट कर सकते हैं. डायरेक्ट साइटोलॉजी कर सकते हैं, कॉल्पोस्कोपी बायोप्सी कर सकते हैं और विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एसिटिक एसिड कर सकते हैं. 25 से 65 साल की एज ग्रुप हमारा टारगेट है. साइटोलॉजी बेस्ड टेस्ट हम 25 साल पे स्टार्ट करेंगे, और अगर हम एचपीवी डीएनए टेस्टिंग या को टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो हम थोड़ा 30 ईयर्स पे स्टार्ट कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी है, अगर हम सिर्फ एचपीवी बेस्ड टेस्टिंग कर रहे हैं तो 5 ईयर्स में हम उसको रिपीट करेंगे, और अगर साइटोलॉजी बेस्ड टेस्ट कर रहे हैं तो हर 3 साल पे हम उसको रिपीट करेंगे. लिमिटेड रिसोर्स सेटिंग जैसे पीएचसी है या जहां पर डॉक्टर्स, ट्रेन डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम है, वहां पर हम वाया कर सकते हैं और उनको रेफरल कर सकते हैं फॉर कॉल्पोस्कोपी विद और विदाउट बायोप्सी. दैट डिपेंड्स कि फाइंडिंग क्या निकली है कॉल्पोस्कोपी में. यहाँ पे आप टारगेट एज ग्रुप देखिए 25 to 65 है, यहाँ पर 30 to 65, राइट. फिर एज टू स्टार्ट है, विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एसिटिक एसिड इज स्टार्टेड एट एज 30, और इसकी फ्रीक्वेंसी एवरी 5 ईयर्स है, एटलीस्ट 1 to 3 times in a lifetime. So crux is every female should have this knowledge that she has to get herself screened for cancer cervix. 25 नहीं तो 30 साल पे तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए. इफ शी कैन अफोर्ड, शी कैन गो फॉर प्राइमरी एचपीवी टेस्टिंग. नहीं है तो पैप्समेयर इज अ वेरी गुड मोडालिटी. वो भी नहीं कर सकते तो विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एसिटिक एसिड जरूर कराना चाहिए. सो इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर वीमेन यंगर देन 21 ईयर्स, चाहे वो सेक्सुअली एक्टिव हो, क्योंकि इसमें वॉश ऑफ रेट ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होता है, रेट ऑफ इन्फेक्शन विद एचपीवी भी ज्यादा होता है. विमेन ओल्डर देन 65 ईयर्स हु हैव एडिक्वेट प्रायर स्क्रीनिंग करा चुकी हैं और उनके नेगेटिव स्मेयर्स आए थे, एंड दोज हु आर नॉट अदरवाइज एट हाई रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर. Women who have had a total hysterectomy and have no history of high-grade cervical lesion or cervical cancer, they also can opt out from cervical cancer screening. So अब क्या है कि this is also important for us to understand कि हम पैप स्मेयर या साइटोलॉजी बेस्ड जो भी टेस्टिंग आएगी तो उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे. तो वी ऑल नो कि सर्विक्स में जो सेल्स होती हैं उनका एक बेसल लेयर होता है, एक और जो सिंगल लेयर होता है, फिर इंटरमीडिएट 2 to 3 लेयर्स होता है, फिर सुपरफिशियल सेल लेयर होता है. यही सुपरफिशियल सेल लेयर शेड ऑफ करता है.
यही हम इस उठा के स्क्रेप लेके इसका पैप स्मेयर करते हैं। सो इसमें अगर सब कुछ नॉर्मल है, देयर आर नो सेल्युलर एटीपिया, नो फाइंडिंग, नो कोइलोसाइट्स, देन इट इज रिपोर्टेड एज नेगेटिव फॉर इंट्राएपिथेलियल लीजन और मैलिग्नेंसी। दूसरा, इसमें दो फंडामेंटल और आ सकते हैं कि हमने कुछ सेल्स ऐसे देखे जिनका हमें जो है तो एबनॉर्मल, बट उनका क्या महत्व है ये हमें नहीं मालूम, तो उसको बोलते हैं एस्कस, एटिपिकल स्क्वामस सेल्स ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस। अगेन, ये नॉर्मल रिपोर्ट नहीं होती है, ना ही एटिपिकल स्क्वामस सेल्स ऑफ हाई ग्रेड लीजन्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ये जो एटिपिकल स्क्वामस सेल्स हैं जिसमें कोई डेफिनेटिव या कंक्लूसिव फाइंडिंग्स नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है और उसके आगे फर्दर टेस्टिंग रेकमेंडेड। फिर अगर इसमें सेल्यूलर चेंजेस आ गए, जैसे यू कैन सी कि इनिशियल 2 लेयर्स हैव बीन इन्फिल्ट्रेटेड और अफेक्टेड, इसको बोलते हैं लो ग्रेड स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन, और इसके चांसेस ऑफ प्रोग्रेशन टू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा थोड़ी से कम होते हैं, but chances of progression to high grade lesion are there. That is why these patients must be kept in follow up and the test or cytology should be repeated. फिर अगर यही सेल्यूलर चेंजेस और एडवांस्ड होते हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स को इन्वॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन। हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन, you can see here the nucleocytoplasmic ratio has altered, there is dysmorphed cellular pattern, but the basement membrane is still intact and this is known as HCL. अब इसके आगे अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन का ब्रीच हो जाता है तो उसको हम या तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा रिपोर्ट करते हैं, या समटाइम्स इट इज रिपोर्टेड एज कार्सिनोमा इन situ also, and this warrants for a definitive management. अगर हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन आता है तो उसमें भी हमें फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन अ व्हाइल। ये तो हो गया पैप बेस्ड या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर एसिटिक एसिड, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 3 to 5% है, और वो हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉर द डे होना चाहिए, ये नहीं कि हम पुराना पड़ा हुआ यूज करें, इट वोंट बी वर्किंग। इसका प्रिंसिपल है कि सेल्स हैविंग न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक एबनॉर्मेलिटी will be having abnormal protein. After application of acetic acid, these abnormal proteins will coagulate and abnormal cells will appear dense white as compared to normal pinkish epithelium of cervix. So this is cell and this is the nucleus. इसमें लेस प्रोटीन तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन होता है। अब ये दूसरी सेल हुई जो इन्फेक्ट हुई, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो काफी बड़ा हो गया, कंटेनिंग लॉट ऑफ प्रोटीन एंड एबनॉर्मल प्रोटीन, सो इसमें न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो एबनॉर्मल हो गया। एसिटिक एसिड क्या करता है, अब इट कोगुलेट्स एबनॉर्मल प्रोटीन, सो हियर एक तो प्रोटीन कम है और दूसरा नॉर्मल है, यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा भी है और एबनॉर्मल भी है। सो व्हेन यू अप्लाई एसिटिक एसिड टू सच टिश्यू एंड सेल, इट विल कोगुलेट नाइसली, and with more the amount of abnormal protein, more is the density, rapidity and sustenance of white lesion. मतलब वो उतना रैपिड भी हो जाएगा, बहुत डेंस भी होगा और काफी देर तक रहेगा जब तक कि एसिडिक इशू एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। प्रोसीजर यानी कि हम करते कैसे हैं इसमें, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड इज अ नेकेड आई एग्जामिनेशन ऑफ यूट्राइन सर्विक्स आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 3 to 5% एसिटिक एसिड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट आफ्टर 1 minute, यानी कि 1 मिनट आपको एसिटिक एसिड सर्विक्स पे लगा के रखना है। ये इक्विपमेंट्स हैं। एसिटिक एसिड यहाँ पे हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाया है। दिस इज कस्कोज स्पेक्युलम, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स, and these are the swabs which we can use for application of acetic acid. So we have applied acetic acid to this cervix, so you can see aceto white areas here. ये पूरा व्हाइट एरिया हो चुका है और ये नॉर्मल है, पिंकिश एरिया। सो इट मीन्स यहाँ पर सेल्स नॉर्मल है और यहाँ पर सेल्स एबनॉर्मल है। सो अगर मुझे बायोप्सी लेनी होगी तो आई टेक फ्रॉम दिस एरिया कंसिडरिंग कि ये एसिटोवाइट एरिया। सी देयर आर अदर पैटर्न्स, यहाँ पे हमने कोगुलेट किया, सॉरी एसिटिक एसिड लगाया। सी इट इज वेरी डेंस, राइट, हैविंग दीज मार्जिन्स एंड इट अपीयर्स वेरी रैपिडली, और काफी देर तक रहता है जब हम एसिटिक एसिड हटा भी लेते हैं। तो अब हम एसिटोवाइट एरिया को
क्लासिफाई करते हैं। 0 पॉइंट देंगे अगर लो इंटेंसिटी एसिडो व्हाइटनिंग होगी, स्नो व्हाइट टाइप का लीजन होगा, शाइनी होगा, इनडिस्टिंक्ट होगा, ट्रांसपेरेंट सा होगा, या फिर बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन जोन होगा। 1 पॉइंट देंगे अगर ग्रे व्हाइट एसिडो व्हाइट एरिया विद शाइनी सरफेस, और 2 पॉइंट देंगे अगर डल ऑयस्टर व्हाइट और ग्रे कलर। इसके मार्जिन सरफेस और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब पे अगर फेदर्ड मार्जिन है, एंगुलर है, जैग्ड है, फ्लैट लीजन विद इनडिस्टिंक्ट मार्जिन्स हैं, माइक्रो कार्टिलेडनस स्ट्रक्चर और माइक्रो पैपिलरी सरफेसेस हैं यहाँ। लेकिन अगर रेगुलर लीजन्स आ गए विद स्मूथ स्ट्रेट आउटलाइंस या फिर रोल्ड और पीलिंग एजेस आ गए, इंटरनल डिमार्केशन हो गया जिसमें कि एक सेंट्रल एरिया ऑफ हाई ग्रेड चेंज एंड पेरिफेरल एरिया ऑफ लो ग्रेड चेंज. So more the points, more the sinister are the findings, and we have to take biopsy from that area. So what is visual inspection after Lugol's iodine? ये ल्यूगोल्स में क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, राइट, Ki+. प्रिंसिपल क्या है, abnormal protein will not contain glycogen. So I've just told it will contain more of protein, that too abnormal quality. Thus it does not take iodine. तो आयोडीन इफ यू रिमेम्बर हम स्टार्च वाला एक एक्सपेरिमेंट करते थे पोटैटो के साथ, तो जितना स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, उतना ही आयोडीन का अपटेक होता है। और अगर ग्लाइकोजन कम होगा यानी कि एबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से, तो वो आयोडीन नहीं लेगा। सो इट अपीयर्स नॉन ब्राउन, थोड़ा मस्टर्डिश और येलोइश कलर का अपीयर करता है। सो इट इज लाइक दिस। ये सेल है, इसमें स्मॉल न्यूक्लियस है, एंड सेल इज कंटेनिंग ग्लाइकोजन लिपिड रिच स्टोर्स। ग्लाइकोजन कंटेंट रिड्यूस्ड इन हाईली डिस्प्लास्टिक सेल्स, जैसे कि हाई ग्रेड स्क्वामस लीजन में which are infected by HPV या फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। अब इसमें क्या हुआ, लार्ज न्यूक्लियस होगा और ये लिपिड ग्लाइकोजन स्टोरेज कम हो गए, तो इसमें ग्लाइकोजन कंटेंट इज रिड्यूस्ड कंपेयर टू HPV नेगेटिव सेल्स, और इसमें इसलिए ग्लाइकोजन या आयोडीन अपटेक नेगेटिव। सो इफ यू सी यहाँ पे S2 वाइट एरिया आ गया, हमें कोगुलेट किया और इसी पे हमने ल्यूगोल आयोडीन लगाया, तो नॉर्मल सेल्स ने ल्यूगोल आयोडीन अपटेक किया लेकिन एबनॉर्मल सेल या टिश्यूज ने नहीं किया। सो वी कैन ऑलवेज डू दिस थिंग कि पहले हम एसिटिक एसिड लगाते हैं, उसमें देख लेते हैं कि एसिड वाइट एरियाज है कि नहीं है, फिर उसके बाद उसी पे हम ल्यूगोल आयोडीन स्प्रेड कर देते हैं और देखते हैं कि इट शुड हैव नेगेटिव आयोडीन अपटेक. So this is a CIN1 lesion with mustard yellow iodine negative area with irregular margin. So this is more doubtful and more, area. This can be demarcated and this can be identified to take biopsy. So these are again typical features. सी हाई ग्रेड, जितना हाई ग्रेड लीजन होगा उतना पेल येलो होगा, उतना ही नेगेटिव आयोडीन अपटेक होगा और उतना ही डेंस एसिडोवाइट एरिया होगा। सो वाया में रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करेंगे, एसिडोवाइट है और विजुअल इंस्पेक्शन आफ्टर ल्यूगोल आयोडीन में नेगेटिव ग्लाइकोजन और आयोडीन अपटेक। पेप्समेयर में हम रिपोर्ट करते हैं कि ये एलसिल है, एक्सिल है, एस्कस है या फ्रैंक कैंसर। एलबीसी में भी हम सेम रिपोर्टिंग करते हैं। HPV DNA में रिपोर्ट आएगी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट हुआ तो डू साइटोलॉजी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द ग्रेड ऑफ लीजन इफ एट ऑल द HPV DNA हैज डन द डैमेज। सो हाई ग्रेड लीजन अगर आते हैं जैसे कि CIN2 और 3 या फिर HCl ऑन पेप्समेयर, डू बायोप्सी। और इनके लिए हम ट्रीटमेंट के लिए एब्लेटिव प्रोसीजर बाय हीट और कोल्ड, थर्मो एब्रेशन और क्रायोथेरेपी, या फिर एक्सीजनल प्रोसीजर्स लाइक लीप और LLETZ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह के लीजन है, हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन है, तो या तो उनको जला दें, गला दें थर्मोब्लेशन या क्रायो करके, या फिर हम उसको हटा दें यानी कि एक्साइज कर दें ट्रांसफॉर्मेशन जोन को। So the management of pre-invasive cervical pre-invasive lesions or cervical intraepithelial neoplasia is by cryotherapy, by ablative procedure, by LEEP organization, or in high-risk cases we can do hysterectomy. So जैसे कि I have shown, हाँ, जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन है सर्विक्स का, इसका लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन कर सकते हैं, या फिर लूप इलेक्ट्रो थर्मल क्वार्टरी भी कर सकते हैं।
सो इलेक्ट्रोथर्मल एक्सीजनल प्रोसीजर, लीप, या फिर लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन कर सकते हैं, या फिर ये पूरा कोन बायोप्सी यानी कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जोन इन द शेप ऑफ कोन हम निकाल सकते हैं। पेशेंट अगर हाई रिस्क है, आपके पास वापस नहीं आने वाली, फैमिली कंप्लीटेड है, तो हम डायरेक्ट उसकी हिस्टेरेक्टमी भी ऑफर कर सकते हैं। So this was about screening of cancer cervix and a bit about management of pre-invasive lesions of cervix. Do post your queries, and yes, now I will. I have started saying that please subscribe and don't hesitate to ask any question. And in next session we will be discussing about cancer of cervix.